Right, next. Transformational leadership history slide, introduction. This is the most recent and most popular approach which is being talked about nowadays by the leadership scholars. And this is under focus since early 1980s. Transformational leadership is part of new leadership paradigm, and it gives more attention to the charismatic and effective elements of leadership. Liking and effective elements of leadership or the transformational leadership. In a content analysis of articles published in Leadership Quarterly, it was found out that one-third of the research was about transformational or charismatic leadership. बहुत फेमस जर्नल है लीडरशिप क्वार्टरली, उसमें 1980s के बाद कंटेंट एनालिसिस से पता चला कि about one-third of the articles were about transformational or charismatic leadership. और एक और रिसर्चर ने ये कंक्लूड किया कि the number of papers and citations in the field have grown at an increasing rate, not only in the traditional fields like management and social psychology, but also in engineering and education and nursing and industrial fields. और एक और रिसर्चर है बॉस, बहुत फेमस किस्म का लीडरशिप के हवाले से. He suggested that transformational leadership is popularly being accepted by all the leadership scholars, and its popularity is probably because of its emphasis on intrinsic motivation and follower development, which fits the needs of today's work group, who want to be inspired and empowered to succeed in times of uncertainty. Clearly, many scholars are studying transformational leadership, and it occupies a central stage in leadership research. आजकल भी आप जहां बात करेंगे लीडरशिप के हवाले से, कोई इंटरव्यू होगा आपका, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का क्वेश्चन जरूर होगा. तो it is the latest and recent concept, that is why I included it in our syllabus. और मुझे ये लगता है कि ये इतना इंटेलिजेंटली ये कंसेप्ट क्रिएट किया गया कि इट इज़ नॉट लाइकली टू गेट ओल्ड. मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया जाएगा, कोई और नया पर्सपेक्टिव या नई अप्रोच आ जाएगी जो इसको डोमिनेट कर लेगी और इसकी जगह ले लेगी, बिकॉज ये बड़ा ब्रॉड सा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया. और जब डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बेसिकली जो फॉलोअर्स हैं या जो टीम है उसको ट्रांसफॉर्म करके उनसे जो यूजुअली एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा उनसे परफॉर्म करवाया जाता है. दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. और ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू स्टे इन द डेज टू कम. इसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड. इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं. एज इट्स नेम इम्प्लाइज, transformational leadership is a process that changes and transforms people, that changes and transforms teams, individuals, and it is concerned with emotions, values, ethics, standards, and long-term goals, not short-term goals. No shortcuts.
Values and ethics and emotions, people's likes and dislikes are important in this approach. It includes assessing followers' motives, satisfying their needs, and treating them as full human beings. जैसे दूसरी अप्रोचेस में या शुरू शुरू में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में ह्यूमन बीइंग्स वर कंसिडर्ड एज machines or tool for production, but transformational leadership talks about full human beings. It doesn't talks about hands of the human beings or only. It tries to satisfy their needs and further develop them, which is the requirement of today's dynamic world, जिसमें रोजाना नई से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और लोगों को उन टेक्नोलॉजीज से अपडेट करना बहुत जरूरी होता है, वरना they'll be left behind and they'll be discarded. So they are taken as the human beings as a whole person, उनकी सब needs और likes और dislikes और capabilities को tap किया जाता है. It is a process that often incorporates charismatic and visionary leadership. Charisma और vision ये भी बहुत important है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में. और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज एन एनकम्पसिंग अप्रोच, एक बहुत ब्रॉड और एक वाइड अप्रोच है. और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वाइड रेंज ऑफ लीडरशिप from very specific attempts to influence followers on one-to-one level to very broad attempts to influence whole organizations and even entire culture, entire nation, entire country. Although the transformational leader plays a pivotal role in precipitating change, followers and leaders are inextricably bound together in the transformation process. लीडर का रोल ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फॉलोअर्स और लीडर्स दोनों इसमें रोल प्ले करते हैं and they are very closely inextricably bound together. आपस में जुड़े होते हैं और उनके इंटरेस्ट भी आपस में जुड़े होते हैं और इमोशनली भी आपस में जुड़े होते हैं और मिल के they perform whatever is usually expected out of that particular team. आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड. राइट, ये जो टर्म है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, it was first introduced by a scholar known as Downtown in 1973, and its emergence as an important approach to leadership began when a classic book by James McGregor, के बहुत मशहूर फिलोसोफर है, इसने एक बुक लिखी 1978 में, लीडरशिप टाइटल था इस बुक का. और इस बुक में बर्न attempted to link the roles of leadership and followership, explain किया, दोनों को लिंक किया. And he wrote of leaders as people who tap the motives of followers in order to better reach the goals of leaders and followers. सिर्फ फॉलोअर्स की एनर्जीज या कैपेबिलिटीज या स्किल्स की बात नहीं करता, बल्कि ये कहता है इट टैप द मोटिव्स ऑफ फॉलोअर्स. लीडर्स आर दोज पीपल who tap the motives of the followers in order to better reach the goals of leaders and followers. और पर के मुताबिक जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? यस सर. अभी भी क्लियर नहीं है? सर क्या कहा आपने? फवाद,
जी सर, कुछ क्लियर है, दरमियान में वो डिस्टॉर्शन है, लफ्ज कुछ जो है वो आहिस्ता समझ आते हैं। अब तो मैंने पंखा भी बंद कर दिया है। सर सीम्स लाइक ये पंखे का मसला नहीं है, लग रहा है माइक का मसला लग रहा है। अच्छा। अभी बताएं। जी सर, साउंड्स गुड। बेहतर है आवाज? जी सर, अब सही लग रही है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो कंसेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, इसमें अभी आवाज, आई डोंट नो, मैंने इसका लैपटॉप का माइक चेंज किया है, इसमें मेरी तो आवाज आपको प्रॉब्लली क्लियर आना शुरू होगी, लेकिन इसमें मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर नहीं, और वैसे ही फील हो रहा है, आवाज़ फिर कम ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अभी अभी आवाज बताई। अभी सही आवाज अभी सही लग रही है। ये फिर मैं इसको, ये लगता है मेरे शिप्स एक्सप्लेन की, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। Transactional leadership, this is about uh, exchanges. It focuses on exchanges that occur between leaders and their followers. Give and take. For example, politicians who win votes by promising no new taxes are demonstrating transactional leadership. Politician कुछ वादे करता है और उसके बदले में वोट मांगता है, तो गिव एंड टेक। Similarly, managers who offer promotions to employees who surpass their goals are again exhibiting transactional leadership. जब कोई ज्यादा काम करके दिखाएगा, उसको प्रमोशन मिलेगी, उसको बोनस मिलेंगे, उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे। दिस इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। और अगर आप मेरी एग्जांपल लें, इन द क्लासरूम teachers are being transactional when they give students a good grade for good work, good assignments done, and good examinations and quizzes done. The exchange dimension of transactional leadership is very common and can be observed at many levels throughout all types of organization. ज़्यादातर आपको जो लीडरशिप की डायमेंशन नजर आएगी या लीडरशिप के मॉडल्स आपको नजर आएंगे बिजनेस वर्ल्ड में या एनी फील्ड, पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, दे विल बी ऑफ ट्रांजैक्शनल नेचर। लेकिन इसके अपोजिट, इन कंट्रास्ट टू ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, transformational leadership is the process where a person engages with others and creates a connection that traces the level of motivation and morality in both the leader and the follower. ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, इट डजंट इम्पैक्ट द फॉलोअर्स ओनली। जब दोनों इमोशनली लीडर और फॉलोअर एंगेज होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, तो फिर ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, दोनों चेंज हो रहे होते हैं, दोनों के लेवल्स ऑफ मोटिवेशन एंड मोरालिटी रेज हो रहे होते हैं और एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप is attentive to the needs and motives of followers.
and tries to help followers reach their fullest potential. मैक्सिमम जो वो परफॉर्म कर सकते हैं वो परफॉर्म करवाने की कोशिश की जाती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में। जो यूजुअली एक्सपेक्टेड होता है उससे ज्यादा परफॉर्म कराने की कोशिश की जाती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में। और बुक में इसने बर्न्स ने एग्जाम्पल दी है गांधी की एज अ क्लासिक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। और ऑनेस्टली मैं इसको गांधी के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई ऑल्सो कंसिडर हिम वेरी इफेक्टिव लीडर, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है वो भी प्रेजेंट टाइम लीडरशिप में किसी से कम नहीं है। और उन्होंने भी एग्जैक्टली अपनी कौम को ट्रांसफॉर्म कर दिया था और वो भी कौम के साथ ट्रांसफॉर्म हो गए थे। वो नहीं थे जो Sir, इस I have a मिशन को question here. भी प्लेस। अब सर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर तो कायदे आजम थे, लेकिन देखिए वो अपने बाद कोई ऐसा लीडर नहीं छोड़ के जा सके कि हु कैन टेक केयर ऑफ द नेशन और जो उनकी तरह से अच्छे तरीके से मुल्क को चला सके। तो चले एक हद तक तो वो चीज हुई, लेकिन वो चीज वो आगे रब ऑफ तो नहीं कर सके कि उनके सक्सेसर्स में से कोई भी ऐसा मतलब कि बाद में कुछ नजर आया नहीं कि जो उनकी तरह से लेके चल सके। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ये नहीं होती कि आप उस चीज को आगे भी किसी तक डिलीवर करें और वो चीज फिर चलती रहे। ठीक है। Somebody wants to comment on this question? सर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में नहीं, आई थिंक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में हम जो अपनी एबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो है ट्रांजैक्शन, गिव एंड टेक। तो आई थिंक फातिमा ने इसको परसीव रिवर्स कर लिया। सर मैं लीडरशिप में तो हम एनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं एज अ टीम मेंबर। ट्रांजैक्शनल में हम जो है वो अपनी एबिलिटी या अपनी कोई भी तकनीक किसी को ट्रांसफर करते हैं। नहीं, उनका क्वेश्चन ठीक है। सर मैं एग्री करती हूँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन, इकरा बात कर रही हूँ। जी प्लीज। सर मैं फातिमा के क्वेश्चन से एग्री करती हूँ, क्योंकि सर कायदे आजम जो थे उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो मोटिवेशंस दी हैं, लेकिन जो है वो सर आगे फर्दर जो है कोई लीडर नहीं उन्होंने क्रिएट किया। जिस तरह से एक जो लीडर होते हैं उन्होंने फर्दर जो है वो सक्सेशन करते हैं सेशन प्लानिंग में, कि फर्दर अपने लिए एक न्यू जो है वो जनरेशन के लिए एक लीडर छोड़ के जाएं, तो वो नहीं था। तो हम इसे किस तरह से कह सकते हैं कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे? तो सर मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगी। जब उनके बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शंस में आई तो शी लॉस्ट, मतलब वो भी नहीं हो सकी। तो फिर बात तो सारी ये थी कि बस वो कायदे आजम तक की थी, उनकी ही फेस वैल्यू पर ही सब चल रहा था, आगे तो किसी चीज को नहीं हुई चीज रब ऑफ। जी हेलो जी जी बोले प्लीज। मुकद्दस बात कर रही हूँ सर। सर देखिए कुछ सर्टेन ट्रेड्स ही होती हैं जो आगे जो है वो ट्रांसफर कर सकता है एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, सारी नहीं होती। कुछ ट्रेड्स थी जो लियाकत अली खान साहब में थी, ठीक है, लेकिन वो फिर वो साजिशों का शिकार और सारा। लेकिन ये है कि कायदे आजम के बाद मतलब पाकिस्तान की मैनेजमेंट जिन हाथों में थी तब पाकिस्तान बड़ी तेजी से फ्लरिश कर रहा था, तरक्की कर रहा था, ठीक है, लेकिन वो साजिशों का शिकार हो गए बाद में, तो एक अलग बात। सर मैं यहाँ पे इनकी बात पे एक कमेंट करना चाहूंगी कि यही चीज तो लीडर ने करनी होती है, फोरकास्ट करना और मिटिगेट करना इस तरह के रिस्क को कि कहाँ से हमें मार पड़ सकती है। अब अगर इस तरह से तो हर डाउनफॉल का वजह यही होती है, साजिशें थी और वो आपको बेट्रेयल था। लेकिन फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि वो लीडरशिप बड़ी एमिनेंट और कमाल की थी अगर वो इन चीजों को ही नहीं फाइट आउट कर सकी या पहले उनको फोरकास्ट कर सकी, वो फ्यूचर में फोरसी ही नहीं कर सकी, तो फिर बात कहाँ रही। और जो ट्रेड्स वाली बात है, तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो हम यही तो कर रहे हैं कि उन्होंने पिक एंड चूज ही तो करना है किसमें पोटेंशियल और किसमें वो
उन चीजों को इनाइट किया जा सकता है या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स यही तो कर रहे हैं कि बंदों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कायदे आज़म की ये चीज मुझे थोड़ी लैकिंग लगती है कि वो प्रोड्यूस नहीं कर सके ऐसा कोई सक्सेसर। देखिए उनको मौका ही 1 साल तो मतलब मौका मिला उन्हें, ठीक है। एक उनके बाद आने वाली भी जो मैनेजमेंट थी, आप ये देखिए कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान जो है वो दुनिया मिसालें दिया करती थी इसकी तरक्की की, ठीक है। सारी ड्यूटीज हम ये नहीं कह सकते कि मतलब सारी की पूरे मुल्क की मैनेजमेंट जो है वो सारी जिम्मेदारी एक ही फर्द की थी। हाँ, उनके बाद आने वाले ये जो लोग थे, ठीक है, इनको चाहिए था कि ख्याल रखें जब पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उनको ये चाहिए था कि वो साजिशों को और इसको कर्टेल करने के लिए जो है वो सारे स्टेप्स ले। कायदे आज़म को मौका ही कितना मिला, बीमारी का शिकार हो गए बेचारे फौरन। अब यहाँ पे इनके बात पे मेरा एक और क्वेश्चन आपसे आ गया कि यही तो लीडर नहीं करना होता टू मेक अ वेरी एफिशिएंट और ट्रस्टवर्दी टीम, कि अगर वो सर पर नहीं भी है तो चीजें चलेंगी। वो एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं और जब करते हैं तो यही करते हैं ना कि लीडर ने टीम ही ऐसी रखी कि वो है या नहीं है, दे फील रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। तो सर इस पे मैं आपकी तरफ से समझना चाहूंगी। चले मेरा तो ये ख्याल है कि उन्हें सर मौका मिलता, वक्त मिलता तो शायद हालात कुछ और होते, ओके, लेकिन वो आपका बीमारी पॉइंट आ उनकी गया इतनी ना? सीवियर थी, उनके पास मौका ही नहीं था, वक्त ही नहीं ठीक था। है, ओके, ठीक है जी। दूसरा somebody else wanted to speak? सर हाँ जी। सर मैं नहीं समझता कि ये जो अभी बात कर रहे हैं इसके साथ मतलब एग्री नहीं करता, क्योंकि कायदे आज़म तक जो था टाइम पीरियड उसमें उन्होंने अपने एंड तक जो है ना हर हवाले से जितनी भी जो साजिशें थी उनको जो है ना नाकाम बनाया। बाकी ये है कि बाद में जो आने वाले लीडर्स थे उनके अंदर आप कह सकते हैं कि ये जो है ना एबिलिटी या काबिलियत इस तरह की नहीं थी, वो साजिशों को अच्छी तरह से वो नहीं समझ पाए। तो मेरा ख्याल है कि ये कायदे आज़म में तो ये एबिलिटी थी वहां तक। उसके बाद का जो पाकिस्तान है उसके अंदर इनको लीडर्स को ये खुद चीजों को जज करना चाहिए था। चले सर इसमें मैं थोड़ा सा इसमें जी प्लीज। ऐसा है कि इसमें हमने एक टर्म पढ़ी हुई है कि पीपल फर्स्ट फॉलो द पर्सन देन द प्लान, कि लोग जो है पहले फॉलो करते हैं पर्सन को फिर प्लान की तरफ आते हैं। और सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन को ठीक से भी परसीव करना चाहिए, या शायद मैं गलत हूँ कि ये तो जरूरी नहीं है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है या ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है वो लीडर्स तैयार करेंगे। मींस के ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कायदे आज़म खुद एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे। मींस के अगर हमारी क्लास में 10 लोग हैं या किसी भी टीम में 10 लोग हैं, उनमें जो इनकरेज है, जिसमें इंस्पायरेशन है, वो खुद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बन जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में ये तो नहीं है कि वो खुद लीडर्स भी जो हैं वो उनको तैयार करके जाए, वो तो खुद एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे, एनकरेज करते थे, इंस्पायर करते थे लोगों को। मेरा अब यहाँ पे आपसे एक तीसरा सवाल आ गया कि जब हम बात कर रहे थे क्लास में विजन की, तो आपने कहा था कि जैसे देखें इमरान खान ने आने से पहले तो दिया कि हम 5 सालों में ये करेंगे, लेकिन अब वो आगे के लिए कुछ नहीं दे रहा, तो हमारी मोटिवेशन उसके लिए लूज होती जा रही है क्योंकि हमारे पास ड्रीम नहीं है टू परस्यू एनीथिंग। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, तो उसमें हम इतना बड़ा एस्पेक्ट कैसे बिल्कुल ही निगेट कर सकते हैं कि कायदे आज़म के पास विजन ही नहीं था, कि उनको पता नहीं था कि जी चले उनकी हेल्थ और सब कुछ है तो मेरे बाद क्या होगा। इतना बड़ा जो एक मिशन जिसको लेके मैं आया हूँ, या एक चीज को जिसको मैंने मटेरियलाइज किया है, तो फिर उनका विजन किधर था कि जहाँ पे वो ये देख ही नहीं रहे थे कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तो आगे लोगों को क्या होना है। सर चले जी जी। मैं सर एक चीज ऐड करूं अच्छा, सर ये जो अभी अपना नाम बता दिए थे, मकसूद है, नाम बोल दिए गए ताकि मुझे में मकसूद है। मकसूद। हाँ जी, ये जो अभी फातिमा बात कर रही थी, तो इस हवाले से मैं एक चीज ऐड करना है। देखिए कायदे आज़म का जो टाइम फ्रेम था वो एक तहरीक की बेस के ऊपर जो है ना वो चलता आ रहा था, जिसमें उन्होंने हर चीज को जो है ना कवर किया, और तमाम बाकी जो थे उनके साथ तहरीक के साथ चलने वाले उनको भी वो साथ लेके चले। अब जब उनको टीबी का वो शिकायत थी और ये खुद भी बीमार हो गए, और एंड टाइम पे जब वो एस्टेब्लिश हो गया कंट्री, उसके बाद उनको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिला जिसमें जो है ना कोई वो हो सकता है कोई कुछ करके जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो फातिमा जिस तरह से क्वेश्चन कर रही हैं इसके साथ कोई बनती है।
सेम इसी तरह सर भट्टो, जैसे भट्टो जो लीडर थे, भट्टो के बाद कोई भी दूसरा उस टाइप का जो है वो ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में दोनों में वो उस तरह नहीं बन सका। तो मेन बात वही आ जाती है कि पीपल फर्स्ट फॉलो द पर्सन देन द प्लान। कि अब जरूरी तो नहीं कि अब भट्टो जो था उसकी एक अपनी वैल्यू थी, लेकिन उसके बाद जो वो कोई भी लीडर उस तरह का जो उस लेवल का नहीं आ सके। सेम इसी तरह कायदे आजम भी ऐसे हैं कि उनकी एक अपनी वैल्यू थी, वो खुद एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे, इंस्पायर करते थे। तो आई थिंक ये तो वो तो खुद एक लीडर थे। सर उमर मैं बात भी कर रहा ऐड हूँ। करना चाहूंगी सर। जी जी सर बोले, जरिए अपना आप नाम भी साथ बताइए। सर जरिए आप सर जी एट दैट टाइम उनका विजन यही था और वो काफी देर से इस पे स्ट्रगल कर रहे थे टू गिव मुस्लिम अ सेपरेट कंट्री जहाँ पे वो मतलब मुस्लिम लॉज हो और सारा कुछ। तो सर मतलब उनका मिशन या विजन कह लें कुछ भी, वो विजन जो है वो यही था कि मुसलमानों को एक अलग कंट्री देना है। वो तो उन्होंने उस पे तो सक्सीड किया, बाकी उस कंट्री को कैसे लेके चलना है उसके लिए तो उनके पास टाइम स्पेन ही 1 साल का था, जिसमें वो उनको टीबी रहा या जो भी था। बट उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम था वो तो किया एज अ लीडर। वो शायद इतने सालों से जो कोई भी नहीं कर सका था कि मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री जहाँ पे वो अपनी सर वो मर्जी से अपने रह काम में तो सके। सक्सेसफुल रहे हैं ना। और जी चले, जो 1 साल गुड की बात हो डिस्कशन। रही है वो तो एक नहीं, लेकिन डेस्टिनी इसको चीज थी। ऑन अ होल He हम was- फेलियर नहीं हाँ कह जी, सकते मैं ये एज अ कह लीडर, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ही वॉज अ फेलियर। मैं ये नहीं कह देखो, रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है लोगों को। कायदे आजम उनकी स्पीचेस कह लो या कुछ भी कह लो, उनकी उस स्ट्रगल ने बाकी मुसलमानों को वो एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि वो अपने लिए एक सेपरेट मुल्क हासिल कर सके, मतलब वो लड़ सके उस चीज के लिए। अच्छा उनकी चले, स्पीचेस से तो अभी अच्छी अब तक हम जो है ना वो महसूस हो रहे हैं। सर वो जो चले, 1 साल बहुत की अच्छी बात हो रही है, डिस्कशन, मैं आई से अच्छी समथिंग डिस्कशन। हाँ जी हाँ जी बोल। कि वो ये जो 1 साल की सब बात कर रहे हैं, इट वाज डेस्टिन्ड। ही डिडंट नो दैट, मतलब कि ही डिडंट हैव दैट एंटिसिपेशन बिफोर हैंड कि 1 साल बाद मैंने चले जाना है। ऐसे तो हम में से किसी को भी नहीं पता। तो दिस रीजन एंड आर्गुमेंट इज नॉट मेकिंग सेंस टू हाँ मी। हाँ, तो लेकिन मैं कहना बोले ये को चाह लेके रही हूँ फातिमा एक सर, सेकंड if you just could explain a little more to me so I get the clarity कि मैं कहाँ पे गलत समझ रही हूँ बात। चले, लाइफ और डेथ आपकी का ये तो बड़ी डिसीजन करना। इंटरेस्टिंग सर डिस्कशन मैं जो हो जरिए रही आपकी थी। बात ही करती हूँ कि कायदे आज़म का एक विजन तो क्लियर था, उन्होंने उस पर काम किया। जी वलिया, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, सॉरी। वलीहा आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। एक्चुअली आवाज नहीं आ फातिमा रही। का जो क्वेश्चन है जो मुझे लगा वो ये है कि अगर इस तरह तो कोई भी दुनिया का जो लीडर है वो अपने बाद उस लेवल का इंसान जो है वो छोड़ के जाएगा तो तभी वो लीडर है। आई थिंक यही क्वेश्चन है कि जैसे कायदे आज़म थे उनके बाद वो जी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं करके गए। तो ये ऐसा तो जी जी, क्वेश्चन ऐसा ही है। सर इनके नजदीक बिलीव ये है के कि जैसे ये भुट्टो के बाद अभी जो बिलावल उठ रहा है और इस तरह से नवाज शरीफ के बाद वो शहबाज क्या कहते हैं, हमजा शहबाज, ये तो इस तरह से तो वो ट्रांसफर ये तो गलत चीज हो जाएगी ना एक तरह से। पर ये भी चले, कंपलसरी नहीं है कि सर्टिफिकेट में पूरी हर पढ़ाई थी ना कि हर जो लीडर बड़ी है सर वो मतलब लीडर का ट्रांजैक्शनल बेटा और लीडर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में फॉल करे। ये भी कंपलसरी नहीं है कि कायदे आज़म ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल के अलावा उनमें और भी बहुत सी क्वालिटीज होंगी, इनबोर्न नहीं क्वालिटीज होंगी। कंपल्सरी नहीं है, पर सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आपने इतना बड़ा मिशन अकम्प्लिश किया, एक विजन रखा, एक पूरा मुल्क आजाद करा दिया, इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ गई, वो चीज हो गई, तो दैट वाज नॉट द एंड ऑफ योर गोल। आगे कुछ तो था ना कि अब उसकी देखभाल और क्या करना है। देयर ही वाज जैसे लैकिंग। ऑल आई एम सेइंग सर दैट कि दैट देखिए, वाज सर द लेवल ऑफ मैं जैसे कुछ सर कहना चाहता हूँ हजरत सर। जी उमर बोले रजी अल्लाह ऊपर। ताला हाँ जो थे वो भी उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो 10 साल हुकूमत और कर लेते तो कोई भी जो एक है वो दुनिया में सारे काफिर नहीं सारे मुसलमान होते। तो फिर इस तरह तो सारे ही इसी चीज में फॉल करेंगे कि हर लीडर के बाद एक वैसा ही लीडर आना चाहिए। जी आप सही कह रहे हैं ये बात। जी सर, और बिल्कुल सर अगर देखो, हम लियाकत अली खान भी तो थे, उनको भी तो शूट कर दिया गया। इस तरह के जो मतलब जो है हो जाए इंसिडेंट्स, तो उसके में तो कोई वो नहीं है ना कि वो कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है।
मतलब लियाकत अली खान के साथ भी हुआ, फिर फातिमा जना को सपोर्ट ही नहीं किया गया फॉलोअर्स की तरफ से। चले, बहुत अच्छे, आप लोगों की डिस्कशन बहुत अच्छी होती है। आई रियली एंजॉय योर डिस्कशन। और जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो उस दौरान भी मैं कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ। अभी मैं जस्ट ट्राइंग अरे टू सर आप हैव अ कंक्लूड बर्ड्स कर आई व्यू। दें। मैं कंक्लूड करता हूँ। मैं ऐसे एक्सक्यूज मी सर, सोच जी सर रिजवान बात कर रहा हूँ, मेरे नेटवर्क का इशू था, बोल नहीं सका। मैं एक बात ऐड जी करूंगा कि कायदे आजम साहब के बारे में इतनी इन्होंने डिटेल में मतलब डिस्कशन की है, लेकिन देखना तो ये है कि जो कायद का टेन्योर था, जब वो लीग में आए, जब एक लीग बनी, जब उन्होंने तहरीक चलाई, क्या उस दौरान उस पीरियड में उन्होंने कोई लीडर तैयार नहीं किया? मतलब उन्होंने 1948 तक वो रहे हैं, मतलब उनका पीरियड रहा है, तो क्या इस जी टर्नओवर में उन्होंने कोई लीडर तैयार नहीं किया? उन्होंने लीडर तैयार किए, जितना टर्नओवर उन्होंने गुजारा, जितने वो लाइव थे। अब अब जब वो दुनिया से चला गए हैं, जैसे एहसन कह रहा है, मकसूद कह रहा है कि जब वो चला गया फिर तो वो किस्सा ही खत्म हो गया ना। फिर तो जो नेक्स्ट लीडर थे उन्होंने लीडर बनाने थे। लियाकत अली खान भी वाज अ बेस्ट लीडर, लेकिन वो शूट हो गए। ठीक है, तो ठीक है। हमने तो देखना ये है कि अफेक्टिव लीडर वो है जो अपने टेन्योर में क्या करता है। मतलब सर आपने आर्मी में जॉब की है, आपके ऊपर जो सीनियर हैं उन्होंने आपको पॉलिश करना है। जब वो छोड़ के चले जाएंगे, वो कैसे, मतलब अगर वो आर्मी छोड़ देते हैं, वो तो वैसे भी ऑफिशियल उनके पास कोई राइट नहीं रहता, अगर दुनिया में नहीं रहता कोई, तो वो कैसे एक नया लीडर बना सकता है? कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, मतलब उसको हम प्रूव अस्सलाम कर वालेकुम सकते हैं? सर मेरा ये मैं भी वालेकुम कुछ पॉइंट था। अस्सलाम। पॉइंट्स ऐड करना चाह रही हूँ। जरूर जरूर। सर जैसे ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, फातिमा ने भी कहा कि अगर कायदे आज़म थे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी इतना ज्यादा नहीं कर सके। फातिमा की बात से भी मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होता है वो अपने जो मिशन है उसको रिव्यू करता रहता है, और जो भी उसके जो भी फर्दर आगे टीम्स होती हैं उनके जो छोटे छोटे टास्क होते हैं वो उनको सपोर्ट करता है। अगर वो नहीं भी रहे थे कि जो भी उनके बाद टीम्स थी उन्होंने जैसे उन्हें गाइड किया था वो फ्यूचर में वैसे ही उनके अकॉर्डिंगली ही चीजों को लेके चलेंगे फ्यूचर में। ठीक है। सुन चलिए, मैं एक जो बेसिक स्टैंड है फातिमा का उससे एग्री करता हूँ कि प्रिपेयरिंग फ्यूचर लीडरशिप या अपने फॉलोअर्स में से अपने जो कायम मुकाम या हु शुड बी एबल टू रिप्लेस हिम, क्योंकि ये तो एक कंफर्म फैक्ट है कि उन्होंने जाना है, तो जाने के बाद मिशन तो नहीं रुकना चाहिए। तो अपने फॉलोअर्स में से ऐसे लीडर्स प्रिपेयर करने चाहिए एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, वो शायद हमें कहीं ना मिले सिवाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उनके हवाले से अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने अपना लोगों को he did tap the motives of the followers in order to better reach the goals of leaders and followers, जो combined और एक दूसरे का गोल था। एंड एट द सेम टाइम और भी आप किसी एस्पेक्ट से किसी एंगल से उनको आप स्टडी करें तो आपको उनमें कमी नहीं मिलेगी, बिकॉज ही वॉज अ परफेक्ट मॉडल, ही वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। उन्होंने अपने बाद बेहतरीन लीडरशिप भी छोड़ी जो बाद में चलाती रही इंतज़ाम को। लेकिन एक टाइम आया कि तकरीबन 40 साल के बाद कि वो लीडरशिप जो चल रही थी वो उस लीडरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी, और फिर ये बनी उमैया का और इस तरह के लोगों का दौर आ गया जो जिन्होंने बिल्कुल ही सिस्टम उल्टा कर दिया। तो उसके अलावा जब आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे तो मैं ऐसे वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर नज़र दौड़ा रहा था, तो मुझे तो ऐसी कोई भी एग्जांपल नहीं मिलती जो अपने बाद अपने जैसा अपने लेवल का बंदा छोड़ के गया हो। क्योंकि आप किसी की एग्जांपल लें, मुझे बहुत इम्प्रेस करता है ये नेल्सन मंडेला। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा लगते हैं कायदे आज़म। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं, इनमें से मदर टेरेसा या अब्दुल सत्तार ईदी।
इस तरह के लोग हैं। तो इवन आप लोग बात कर रहे थे भुट्टो की और इस तरह के लोगों की, तो अपने बाद अपने जैसा बंदा ये तैयार नहीं कर सके, और कायदे आजम के बाद भी कायदे आजम के लेवल का बंदा नहीं था। अगरचे खान लियाकत अली खान के हवाले से मेरा तो बहुत पॉजिटिव व्यू है, वो बहुत अच्छे लीडर थे, और अगर उनको उनको मार देना या उनको सीन से हटा देना, दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि वो कुछ साजिशों, कुछ नेगेटिव लोगों के रास्ते में वो रुकावट थे। तो कायद आजम ने किसी हद तक अगर आप कहें तो लीडरशिप तैयार की है, लोग बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं, हुसैन शहीद सोहरावर्दी है या खान लियाकत अली खान है, जो उनको प्लेस कर सकते थे और अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन बाद की साजिशों ने उनको नहीं चलने दिया, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो गोल नहीं अचीव कर सका जो अचीव करना चाहिए था। तो अगर हम ये कहें कि कायदे आजम के बाद 2-3 साल तक उनकी लेगेसी चलती रही, जैसा या उनसे कुछ काम बट इफेक्टिव लीडर रहा 2-3 साल, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम